Hey guys, welcome back to Abi Life Vlogs. I'm so excited today because we are going from Surrey to Victoria, BC. It's a 1 day quick day trip and the weather is absolutely nice, so it's just a perfect day to chill around and have a travel day. Okay, so we have reached the Twasan ferry terminal. Guys, there's a little bit wait in the line for the ferry to board in, and meanwhile I thought why not explore this cute little market area over there. So I'm just having my breakfast and killing some time till the time ferry comes in. We are finally on board, and honestly, no matter how many times you take this ferry ride, it's always so relaxing. Ocean views, fresh air, and just the calming vibe. This is one of the favorite part of mine for the Victoria trip. Just being on the ferry, enjoying the view, and feeling the wind. पूरा peaceful mood है. So our first stop is Hatley Castle, and guys, look at this. It's straight out of a fairy tale. It's so beautiful. To me it looks like जैसे मैं किसी movie shoot पर हूँ. And the fun fact about this place is also ये बहुत सारी movies यहाँ shoot हुई हैं, जैसे कि X-Men and Deadpool. I mean, like, that's pretty cool, right? This entire place is so photogenic, and everywhere you turn, even if it's a small little corner, it's so perfect Instagram spot hai, or it's all free of cost, right? So this time I thought why not to start the Victoria trip from Hatley Castle instead of going to the Parliament buildings at first. And हमें यहाँ पे इतना ज़्यादा time मिल गया. Thankfully it wasn't rushy enough. It's just at the starting of spring, so you could see all these green colors, flowers coming up. The vibe was so pretty, and I think they are going to shoot the movies again this summer and spring. So if you're coming here planning a trip, definitely check out this place for sure.
So Hatley Castle basically 1908 में, like just imagine so many years back, ये तब बनाया गया था by James Dunsmuir, जो कि एक super rich industrialist था यहाँ का. ये basically उनका family home था. I mean, like, look at this, guys. This is like so big to be a home, right? It's so beautiful. And then although ये open नहीं था इस time, हम अंदर जाके पूरा view अच्छे से नहीं देख पा रहे थे, but then I could see from the mirror glasses something inside and it looks so nice and beautiful. अभी ये castle एक part है Royal Roads University का. So basically there's a university named Royal Roads University. ये castle उसका part है and it's even open for public tours. अगर आप plan करके आओ अच्छे से तो आपको time मिल जाएगा. तो अगर आपको ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में या फिर ओल्ड आर्किटेक्चर के बारे में, और या फिर अगर आपको सिर्फ अच्छी पिक्चर्स ही लेनी है, लाइक you want to do some kind of a shoot, this place is a must visit. And I really like this place because यहाँ पे किसी भी तरह का रश नहीं था. Parking is super easy, and so definitely check out this place if you're coming here. Garden area भी अच्छा है, roses, pretty big lawns हैं, ocean का view है. बहुत अच्छे से आप वॉक कर सकते हो, कैप्चर कर सकते हो, शॉट्स ले सकते हो, इवन ड्रोन शॉट्स ले सकते हो. सो डेफिनेटली चेक आउट दिस प्लेस. ओके गाइस, अब हम आ गए हैं विक्टोरिया का सबसे फेमस स्पॉट. आई एम श्योर एवरीबडी मस्ट हैव सीन द पिक्चर्स एंड वीडियोस ऑफ दिस स्पॉट. सो व्हेन यू टॉक अबाउट विक्टोरिया, आप सबसे पहले यही बिल्डिंग्स देखते हो. इट्स इनर हार्बर एंड राइट बिहाइंड मी इज़ द ब्यूटिफुल पार्लियामेंट बिल्डिंग्स. लुक एट दिस व्यू, इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट. विक्टोरियाज़ इनर हार्बर पूरा सिटी का हार्ट है. सामने बोट्स, क्रूजेस, लोग कॉफ़ी लेकर वॉक कर रहे होते हैं और स्ट्रीट पे म्यूजिशियंस परफॉर्म कर रहे होते हैं. एंड इन इवनिंग टाइम यू सी पूरा लाइवली एरिया हो जाता है ये. एंड दिस पार्लियामेंट बिल्डिंग यू सी बिहाइंड मी, इट वाज एक्चुअली बिल्ड इन द ईयर 1897. विक्टोरियन स्टाइल की एकदम रॉयल आर्किटेक्चर है, स्पेशली एट द नाइट टाइम जब पूरा लाइट से डेकोरेट होता है, एकदम मैजिकल लगता है. ये बिल्डिंग ब्रिटिश कोलंबिया का लेजिस्लेटिव असेंबली का ऑफिशियल प्लेस है, जैसे जहाँ MLAs वगैरह बैठते हैं. लाइक ऑल द गवर्नमेंट थिंग्स हैपन हियर. बट सबसे अच्छा पार्ट ये है कि ये ओपन होता है पब्लिक के लिए. लाइक यू कैन टेक द पब्लिक टूर्स एज वेल. और यहाँ के जो लॉन्स हैं वहाँ बैठो, एंजॉय करो. आई मीन लाइक द वाइब इज़ समथिंग विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट है. और हार्बर की साइड पे इतने क्यूट से कैफ़ेज़ हैं, बेंचेस बने हुए हैं जगह जगह पर. विक्टोरिया इज़ मोर अबाउट द टूरिस्ट एंड ट्रैवल थिंग.
मेरे को तो ये विक्टोरिया का सबसे फेवरेट प्लेस लगता है, बट ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू सी अदर नेचर वाली प्लेसेस तो यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर कैसल्स एंड स्टफ। बट देन अगर आपको टूरिस्ट वाली जगह देखनी है जहाँ पे ज़्यादा ट्रैवलर्स हैं, टूरिस्ट हैं, डेफिनेटली स्टार्ट फ्रॉम हेयर। आई पर्सनली रिकमेंड कमिंग हेयर अगर आप पहली बार विक्टोरिया आ रहे हो। ओके गाइस, सो ये जो सुंदर सी बिल्डिंग आप देख रहे हो मेरे पीछे, दिस इज़ द फेमस फेयरमाउंट एम्प्रेस होटल। इट्स एक्चुअली वन ऑफ द आइकॉनिक होटल्स इन कनाडा एंड विक्टोरिया की शान है ये। एम्प्रेस होटल का एक बहुत ही फेमस ट्रेडिशन है आफ्टरनून टी एट द एम्प्रेस। मतलब पूरा रॉयल वाइब के साथ यहाँ टी सर्विस होती है विद क्यूट लिटिल सैंडविचेस, कोन्स, पेस्ट्रीज, एकदम जैसे ओल्ड स्कूल ब्रिटिश स्टाइल टी। एंड ट्रस्ट मी इट्स सो फैंसी। जो टी पॉट्स, कप्स और सेटिंग्स यूज़ करते हैं, इट्स लाइक अ रॉयल पैलेस वाली सेटिंग। थोड़ी सी महंगी होती है, ऑफ कोर्स इट्स बिटवीन $90 to $100 और आपको पहले प्री बुकिंग करनी पड़ती है एंड इट्स पर पर्सन। बट अगर आपको लग्जरी एक्सपीरियंस लेना है देन इट्स टोटली वर्थ इट। और ये एम्प्रेस होटल बना था 1908 में, जो कि बहुत ही ओल्ड है, हिस्टोरिक है, लैंडमार्क है। एंड इवन की क्वीन एलिजाबेथ और बहुत से हॉलीवुड सेल्ब्स यहाँ पे आते हैं, रुकते हैं और ये सब एक्सपीरियंस भी लेते हैं। इफ़ यू आर नॉट स्टेइंग हियर यू कैन जस्ट कम एंड एक्सप्लोर द आउटर एरिया, टेक पिक्चर्स, बट देन आई वुड रेकमेंड इफ़ यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम डेफिनेटली हैव दिस एक्सपीरियंस एंड प्री बुक कर लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रश होता है। ओके गाइस, सो अब आ गया है हमारा आज के ट्रिप का लास्ट स्टॉप और हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बट स्टिल आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर इट। करंटली वी आर इन चाइना टाउन और ये जो विक्टोरिया का हिस्टोरिक चाइना टाउन गेट है, इट्स एक्चुअली द ओल्डेस्ट चाइना टाउन इन ऑल ऑफ कैनेडा। नाउ व्हेन आई से अबाउट चाइना टाउन, अगर मैं वैंकूवर के चाइना टाउन से कंपेयर करूँ, दैट इज़ रियली रियली स्मॉल, बट ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही नाइसली बना हुआ है, कलरफुल है, वाइब्रेंट है और कल्चरल स्पेस है। छोटी छोटी सी लोकल शॉप्स बनी हुई हैं यहाँ पे और वर्ल्ड मेडिसिन स्टोर्स हैं, ऑथेंटिक चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स हैं। पूरा एरिया एकदम से जैसे विंटेज चाइनीज़ रेड कलर के लालटेन्स एंड स्टफ, जिसे स्ट्रीट बहुत अच्छे से डेकोरेट की हुई है। बिकॉज मेरे को याद है अगर जब मैं पहली बार वैंकूवर का चाइना टाउन एक्सप्लोर करने गई थी, दैट वॉज जस्ट वन स्ट्रीट, बट दिस इज़ लाइक अ बिग लॉन्ग एरिया, राइट? And now my favorite part of this Chinatown is Fan Tan Alley, which is something that you should never miss out because this is really really famous alley. तो ये जो फैन टैन एली है ये ऑफिशियली कनाडा का सबसे नैरो स्ट्रीट है। इट्स जस्ट 0.9 मीटर्स वाइड। एट एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही इंसान सामने से आ जा सकता है, मतलब लिटरली दो लोग भी साइड बाय साइड मुश्किल से ही निकल पाते हैं। आई लव दिस प्लेस, इट्स सो क्वर्की। टाइनी से बुटीक्स हैं यहाँ पे, हैंडमेड ज्वेलरी स्टोर्स हैं, शॉप्स हैं, क्यूट से कैफ़ेज़ यहाँ पे छुपे हुए हैं। और पहले ये गैम्बलिंग डेन था एक्चुअली। This was the street and alley was not street but this alley was basically used for gambling या फिर secret opium shops होते थे यहाँ पर। बट अब ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है एंड ऑनेस्टली बहुत से लोग यहाँ पे परफेक्ट इंस्टा पिक्चर्स के लिए आते हैं। चेक आउट दिस, इट्स लाइक अ बेस्ट प्लेस फॉर एस्थेटिक मूडी शॉट्स एज वेल। और अगर लाइट कम होती है इस नैरो स्ट्रीट में तो वो शॉट्स और भी अच्छे लगते हैं। एंड पर्सनली मेरे को चाइना टाउन इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज यहाँ पे जो एक कलरफुल सी वाइब है, यू डोंट गेट टू सी दिस मच कलर्स आउटसाइड, सो इट्स परफेक्ट। रेड कलर स्प्रिंग और समर के लिए तो बहुत ही अच्छी आउटिंग स्पेस है।
that was all about my today's vlog. Thank you so much for being with me. Please give me a like and subscribe my channel. Leave a comment in the comment section below because I love to read your comments. I didn't shoot the ending because I was so tired. I will still see you in my next vlog. Stay healthy, stay safe. Bye.